from you, your experience of making this wonderful film. First of all, thank you everybody. Yeah. All of you, thank you very much over here. I must say one thing. Today I'm missing Shabana ji over here. She's not here, she's in Bangladesh, but her wishes are with us, with all of us. Jui ji, the driving force of the film, always there. रिएक्शन में समझ गया दिव्या जी, these three main ladies, they supported me a lot, and my shoulder, Mr. Baba Azmi. And that right from the day one, there's one person who was with me, Mr. Ranjeev and his wife, Neetu ji. And all the star cast who are my friends over here, Samir ji, Upasna ji, Gavi, Arya, Divya Jyoti ji, Saiba ji, and Adi. Thank you very much, all of you. Thank you very much. सर टेल मी वन थिंग, नहीं नहीं नहीं, आप माइक रखिए, मुझे एक बात बताइए कि जैसे जो डायरेक्टर होते हैं, भले हम एक्टर्स की स्कूल ख़त्म हो गई हो, लेकिन जब सेट पे आते हैं, आई एम श्योर ऑल एक्टर्स विल अग्री होती, तो डायरेक्टर सर जो होते हैं बेसिकली वही हमारे टीचर होते हैं. एम आई राइट? ही उनके ही डायरेक्शन के हिसाब से वी यू गाइज हैव टू वर्क. सो ये जो स्टूडेंट्स जो थे आपकी फिल्म के, जो भले टीचर्स रहे हो, बट एक्चुअली जो आपके स्टूडेंट्स थे व्हेन यू वर शूटिंग, so were they good students, or were they mischievous students? Any experience that you would like to share with us? It was a combination of all. Because my principal, Mr. Amin Surani, he never said anything to me कि जैसे क्लास लेने वैसे लेते रहो. बट मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे थे, किसी ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं छड़ी से किसी को मारूं. So they all were very good to me. Thank you all of you. Okay, who was the most mischievous amongst all? Most mischievous? No. No. Okay, wow. So I'm sure, yeah, we've got like a wonderful students. No wonder. I must tell you one thing. That is the reason why we completed this film within 6 months with all these stars who are sitting over here. Means my Baba sir told me once कि इन सबको लेके एक साथ इतनी जल्दी फिल्म नहीं बन सकती. But because all of them, ये बन गई. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. और राइट, सर ने बाबा जी का नाम लिया है, हमारे फिल्म के डीओपी मिस्टर बाबा आजमी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड लेट्स वेलकम हिम ऑन द स्टेज एंड हियर इट आउट फ्रॉम हिज एंड. हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू शूट दिस वंडरफुल फिल्म विद दीज फैबुलस एक्टर्स? आपका सवाल है what was the experience like working with great actors? Yeah, the experience was nice, but घबराहट सबसे ज़्यादा मुझे जब थी when I was shooting Shabana, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो she would look at me कि इसका मैं घर में सवाल करूँगा whether I am in focus or not. वो एंड तक उनको ये भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं फोकस कर सकता हूँ, तो बहरहाल वो तो अपनी जगह था. ओके, तो फिर घर पे आपकी क्लास लेते थे वो एक्चुअल में? हर संडे. हर संडे? अच्छा. संडेज को we normally have a family lunch. ओके. So that's the time होता था. ओके, सो मेरे पे लाइट कम थी, उन पे लाइट ज्यादा थी, वो फोकस में थे, मैं सॉफ्ट फोकस में, सारी चीजें. All right, apart from her, the overall experience while shooting the film. I must say, अमीन सुरानी एक नए प्रोड्यूसर हैं, और जिस फोकस से और जिस हिम्मत से उन्होंने ये फिल्म बनाई है, और जब इतने सारे स्टार्स एक जगह जमा हो, तो ये बात सही है कि मैंने जयंत जी से भी कहा था कि ये मुश्किल है कि इतने लोगों की डेट्स सिंक में लाना एंड करना. बट ऑफ कोर्स दे हैव ऑल बीन वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक they have all been very supportive also after meeting Amin Surani. उनका बहुत बड़ा contribution है उसमें. For the kind of person he is, he's so positive. He has never said कि यार जल्दी ख़त्म कर दो, वक्त ज़्यादा लग रहा है. Nothing like that. So it was great. I mean, I feel
कि this industry can do a lot with producers like Amin. Certainly, sir. Thank you, sir. Thank you so very, very much for talking to us. All right, ladies and gentlemen, it's now time to invite the stalwart of our film industry who has. And it was like after a long time, I'm as Juhi ji said, कि I'm also doing a film which is very based on reality and characters which are very real. So this was a very good experience as a real character. That was my experience. And as I wasn't a student, so I can't say I was learning. But I was teaching quite a lot. And I was teaching under the shadow of Mr. Arya Babbar. He was though younger than me, but he's much older than me. Anyway, so anything more? I think that would be fine. लेकिन I think I was the luckiest one because मुझे हर एक एक्टर के साथ फ्रेम शेयर करने का मौका मिला. I learned so much. चलो टीचर्स की बात ही, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज एन एक्टर मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और बाकी मैंने मैनेजमेंट और टीचर्स के जो पंगे थे वो मैंने सॉल्व किए थे. क्या बात है. Thank you so much. And we move to Arya ji. Arya ji, चलिए देखते हैं. From the film, I believe that you are playing the negative role of the business tycoon who's very practical, who just knows money, money and money. So let's hear it out about your character. Thank you so much, ma'am. मैं और क्या बोलूँ, इन्होंने मेरा पूरा character बता दिया. Well, just very simply putting it, I am playing Anmol Parekh. He is back from, I think, UK, and his management studies, everything is over, and he wants to take education system on a very business level. He's very practical. He wants to take it, mint money, and that's all that he's looking at. And basically, he joined hands with Divya ji's character, and how this character, and he basically she influences him completely, and what moves on. So, Divya ji, your character, I'm so sorry, I took up your job. No worries, I would love that. I'll keep quiet now. It's my very bad habit. I keep talking a lot, so that's why Divya ji also keeps scolding me. I think I ended up being the most mischievous student on set. Absolutely. Thank you so much, ma'am. Up to you. Yes, he has done my job. Over to Divya ji. Let's hear it out. Her experience and her character. First of all, I'd like to say, हम सब के जो सबसे खास दिन होते हैं, हम कहीं भी पहुंच जाएं, कहाँ पर भी हों, सबसे खास दिन हमारे होते हैं स्कूल के दिन, जहाँ हम दोस्त बनाते हैं, जहाँ हम उन टीचर्स से एजुकेशन लेते हैं, और वो जो चीज़ें हमें जो हमारे बनता है बेस, वो ज़िंदगी भर चलता है. एंड आई एम श्योर एवरी वन इज़ गोइंग टू रिलेट टू दिस फिल्म. किसी के कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे हम घबराते हैं और अब भी कहते हैं कि यार वैसी क्लास नहीं होनी चाहिए थी. सो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस डूइंग अ फिल्म लाइक दिस. व्हाट डू आई से अबाउट जयंत जी? आई वुड जस्ट से अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया. क्या बात है. बहुत खूबसूरती से इन्होंने, आई रिमेंबर मेरी कास्टिंग कैसे हुई थी इस फिल्म में. मैं किसी से मिलने जा रही थी नरेशन के लिए, और लॉबी में ये मुझे मिले थे, और इनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ पहले, और मिले और लॉबी में बोले, सुनिए मैं तो आपको मिलने ही वाला था, आई एम मेकिंग अ फिल्म विद शबाना जी, विद जूही जी, एंड द नेगेटिव रोल आई वांट यू टू डू. I said me negative because I've never done a negative role. And जो उनके चेहरे पर एक conviction था, जो trust था, that was something that I really look for in a director. And what is something very special about this film is that this film has everyone who's extremely passionate about doing what they're doing. बहुत सच्चे लोग हैं इस फिल्म से जुड़े, चाहे हमारे प्रोड्यूसर हों अमीन जी, चाहे बाबा सर हों, शबाना जी हों, जूही जी हों, जितने मेरे यहाँ मित्र बैठे हैं, बहुत सच्चाई से, बहुत प्यार से सबने काम किया है. और जब ऐसा कुछ होता है तो द रिजल्ट हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, एंड आई एम सुपर प्राउड दैट belong to this film, and I'm sure you're going to really like it very much. Thank you, ma'am. Thank you so very much for sharing your wonderful experience. All right, over to Upasana ji, and let's talk about her character in the film. मैंने जब पहली बार ये फिल्म का सब्जेक्ट सुना रंजीव जी से और जयंत जी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कुछ 1-1.5 साल से मैं लगातार कॉमेडी ही कर रही थी, तो मुझे लगा कुछ ऐसी सेंसिबल फिल्म करनी चाहिए, कुछ ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए जिसे करके मज़ा आए एज ए एक्ट्रेस.
तो जब ये इन्होंने मुझे 2-3 ही सीन सुनाए थे रंजीव ने, तो मुझे लगा मेरे को अपना रोल भी नहीं सुनना है, मुझे ये फिल्म करनी है। इतनी खूबसूरत फिल्म इन्होंने लिखी है। और जयंत जी के साथ तो डेफिनेटली मैं पहले काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, और मैं चाहती हूँ भगवान करे कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो और जयंत जी बहुत सारे अवार्ड्स इनमें भी मिले और हमें भी मिलें कुछ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको बाद में माइक मिलता है, क्योंकि सब लोग सब कुछ ही बोल चुके होते हैं। मतलब वो अभी प्रोड्यूसर की भी तारीफ हो गई, एक्टर्स, तो आप सोचते रहिए अभी क्या मैं सोच रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मैं यही सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत बीता है और मुझे अपने सारे टीचर्स याद हैं। तो ये फिल्म करते हुए मुझे और ज़्यादा वो याद आए। मैं अब चाहती हूँ कि मैं होशियारपुर जाऊँ, चंडीगढ़ जाऊँ और उन सब से मिलूँ और उनको थैंक यू बोलूँ। ये जज्बा मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो हर एक के दिल में आने वाला है। जब कोई भी ये फिल्म को देखेगा तो उसके दिल में ये आएगा कि एक बार जाके अपने टीचर्स को थैंक यू बोलें, एक बार उन्हें फ़ोन करें, उन्हें कहें कि हम आज जो भी हैं आपकी वजह से हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे एक स्टोरी सुनानी छोटी सी। मेरी दीदी की बेटी है पर्ल, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। मुझे बोली कि 3 लफ्ज़ों की एक कहानी है टीचर्स पे, कि एक आदमी को हम एक दिन मछली देते हैं, उसका पेट भर जाता है। दूसरे दिन उस आदमी को फिर हम मछली देते हैं, उसका पेट भर जाता है। और अगर हम उस आदमी को मछली पकड़ना ही सिखा दें तो ज़िंदगी भर के लिए उसका पेट भर जाता है। तो ऐसे ही हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा हुनर, एक ऐसी चीज़ दे देते हैं कि हमें उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मैं सोचती हूँ कि अभी जो मैंने बचपन में सीखा, जो मैंने 6 साल क्लासिकल सीखा डांस, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, फिर मैं वहाँ टीवी सेंटर में जाती थी, तो वो मेरे टीचर्स थे जो मुझे सिखाते थे कैसे एक्टिंग करनी है। तो मैं रेडियो में जाती थी, मैं कुछ रेडियो स्टेशन पे गई जब मैं कुछ 11 साल की थी, और मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जिनका मुझे शायद मतलब भी नहीं पता था। तो जैसे मैंने द्रौपदी प्ले किया और मैंने और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स, तो मुझे वो लोग बताते थे अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो, हाँ, मतलब वो साउंड से, क्योंकि रेडियो पे प्ले करना, तो मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन वो मुझे सिखाते थे कि आपको ऐसे करना है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं जो भी हूँ, तो मुझे ये फिल्म करने के बाद और ज़्यादा एहसास हुआ कि मुझे कितने थैंकफुल होना चाहिए अपने टीचर्स का। अभी मैंने कुछ टाइम से कुछ ऐसी फिल्में देखी जिनका कोई सर नहीं था, पैर नहीं था, ऐसे ही फिजूल टाइप, ना कुछ हम अपने बच्चों को उससे सिखा सकते हैं, पता नहीं, कुछ ऐसी फिल्में अभी कुछ टाइम में मैंने देखी। तो ये मुझे मरवाना चाहते हैं, ऐसा मैं कोई नाम नहीं लूँगी। या फिल्म इंडस्ट्री वो बाहर निकलते हैं बकवास फिल्म, अरे वेरी गुड क्या काम किया है, सुपर हिट, अरे अवार्ड्स, माइंड ब्लोइंग। तो उसमें ये मुझे बाबा जी फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं फंसूंगी नहीं, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, सरदार नहीं हूँ, इसका ये थोड़े मतलब है। और अभी 12 भी नहीं बचे हैं। वो मैं खुद सरदार नहीं हूँ, मतलब मैंने कहा इतनी ऐसा मत बोलो। इससे पहले कि ये मुझे मारने आ जाएं, थैंक यू सो मच। अब जूही जी तो बोल चुके हैं, लेकिन नहीं, एक बार, हाँ, समीर जी समीर जी बोल रहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। Thank you so much, Upasana ji, for entertaining us. Yeah, no wonder you are doing superbly well in comedy, and I'm sure आपकी फिल्म में भी आपका बहुत अच्छा किरदार होगा. Sameer ji, yes, about your experience while shooting and again your character too. जो भी बोलना था वो सबने बोल दिया. I agree with all of them. Whatever they said, everybody I agree with. Or it was a great experience working with Amin ji and Jayant ji and Baba ji. And actually जब मुझे पहली बार नरेशन दिया उन्होंने बताया कि you have to play Juhi's husband, और उसमें शबाना जी हैं, दिव्या is there, और जरीना जी हैं, ग्रीश कन्नड़ हैं. तो honestly मैं स्क्रिप्ट सुन नहीं रहा था, तब मैंने कहा यार ये तो करूँगा मैं, no matter what happens. But अब थोड़ी सी सपोर्टिंग हस्बैंड का जो मेरा रोल है वो प्ले करने की कुछ आदत सी बन गई है. घर में नीलम है,
इस फिल्म में जूही जी हैं, बागबान में दिव्या थी, तो हाँ सपोर्टिंग हस्बैंड, और इट्स कम आउट वेरी वेल, वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट एवरीबॉडी एंजॉयज द फिल्म. थैंक यू. Thank you so much, Samir ji. I would request Jayan ji to kindly come here once again. And yes, my dear friends, we've got. These the songs. दीप ज्योति जी, हिमायत भाई, सुदीप्ता जी. We'll come to the questions. I guess let's just complete with the pictures. Yeah, the photo session. Are we done? So can we go ahead with the interviews? All right, fantastic. Okay, so let's go with him first. And guys, yes, last line is still left. Okay, let's go for it then. Are we done? Okay, I think I'll have to sit here. Yeah, are we done, guys? Yes? All right. Thank you. Thank you so much. Okay, so we begin with... This is Vijay Shankar here. How are you? Well, the question is very basic question to the writer or to the director. You know, the title is Chalk and Dust. It's really catchy. I really like the title. So, yeah. You know, short and sweet like. So could you throw some light on that? Because, you know, when I just saw the title, I thought it must be concerned with education. Because chalk and dust is very vital. In every school, it has to be there. Otherwise, you know, things don't go further. On the title. Yeah, really? On the significance of the title. You've got mine? बोल दिया. मुझे नहीं बोला. अच्छा मुझे चलिए मैं तो all I can say is I completely agree with you and I'm so happy कि आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तो जब से स्क्रिप्ट सुनी और ये टाइटल सुना इनफैक्ट मुझे कुछ पता है कि हल्का हल्का आपने बताया था बीच में कि कुछ इंडस्ट्री के कहीं से लोगों ने बोला कि यार ये इंग्लिश का टाइटल है इसे चेंज कर दीजिए और मैंने लपक के कहा प्लीज़ मत चेंज करिए बहुत ही अच्छा इट्स अ वेरी ब्राइट टाइटल सो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू मगर आपने ये कैसे चुना और ये कहाँ से आपके पास आया शायद रंजीव जी आप बता दें या जयंत सर आप भी बता दें. मैं बताता हूँ. म्यूजिकल प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन एवरीवेयर एवरी डे. तो भाईदास में मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखने गया था एंड बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स जिसमें मुझे नींद आने लगी थी. यस इट्स अ फैक्ट क्योंकि हमारी राइटिंग चल रही थी हम टाइटल्स सोच रहे थे. हमारे मित्र जितिन भाई उन्होंने एक टाइटल सजेस्ट किया था रंजीव ने द जॉब सजेस्ट किया था बट आई वॉज नॉट हैप्पी. और वो 3 गाने बैक टू बैक सुनने के बाद मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं स्कूल में गया था टीचर चौक से पढ़ाती थी डस्टर से रब करती थी. कहानी को लिंक हुआ इट इज़ शबाना जी जूही जी एंड दिव्या जी. तो फिर ये टाइटल मैंने नेक्स्ट डे आके शुभेंद्र सर रंजीव से पूछा कि ये टाइटल कैसा है एंड दे बोथ इमीडिएटली लाइक्ड इट. थैंक यू. एक्चुअली बेसिकली वो 3 गाने थे जो इतना बोर कर दिया था इनको उसकी वजह से टाइटल रखा गया. Thank you. So now we know how we've got the title. Yes. In fact, Chalk and Duster, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चौक से टीचर्स लिखते हैं पर हमारा जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी डस्टर से मिटा देता है चाहे मैनेजमेंट हो चाहे स्टूडेंट्स हो. एक छोटी सी बात कि ये थॉट मेरे माइंड में कैसे आया. मेरी ब्रॉटअप जालंधर में थी और मैं कभी जालंधर जाता हूँ. आई स्टडीड इन सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल. तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स मिलते हैं और पाजी की हाल चाल है वो दिया अरे तू पाजी मैं सेंट जोसेफ्स में लगा अच्छा और सुनील सर कैसे हैं कहते पाजी उनकी तो डेथ हो गई
और सर एक फ्लैश याद आता था कि कॉरिडोर में एक सर चल के आ रहे हैं, जो एक्चुअली हमारी, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारी लाइफ के रियल हीरोज़ थे, हमारे टीचर्स जिनसे हम रिलेट करते थे। हम, वो मैम्स थी, हम उनका पल्लू पकड़ के घूमते रहते थे, ऐसे लगता था कि वो हमारा नाम बोले। हाँ, छोटे छोटे हम हमारा नाम बोलें। ऐसा क्या हुआ कि वो जो टीचर्स थे, जो हमारे के जब हम बड़े हुए तो एक जो पहले हीरो और हीरोइंस थे वो एक जूनियर आर्टिस्ट बन के रह गए। सडनली वी फॉरगॉट देम। आज मैं पक्का मोस्टली आप देखिए कि जितने भी लोग हैं किसी को पता भी नहीं होगा आपके टीचर्स कहाँ हैं। वो टीचर्स जिन्होंने बचपन में आपका ए करेक्ट कराया होगा, अगर आज मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है तो किसी ने तो मेरा ए ठीक कराया होगा कि ए की कुंडी ऐसे होनी चाहिए, पता ही नहीं कहाँ है, उनके नाम भी नहीं पता। So this is Chalk and Duster. At least there is a tribute to teachers. We thank our parents, we thank God. Then there is Guru. ये है Chalk and Duster. मेरा सवाल है. Very well said, sir. Thank you so much. Okay, we move to the gentleman out here. Sir, next is you. Who's got the mic right now? Okay. मेरा सवाल है अमीन सुरानी से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. लोग कहते हैं आजकल स्कूल बिजनेस बन गया है और आपने फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाया है, आप क्या मानते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अपने टीचर्स को भूल चुके हैं. एक्चुअली वही बताने के लिए मैंने जब मेरे को रंजीव सर ने स्क्रिप्ट सुनाई, जैन सर ने स्क्रिप्ट सुनाई, यही चीज़ हमने बताने की कोशिश की है कि ये बिज़नेस नहीं है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, इसको उस तरह से लेके चलिए. वही चीज़ हमने ये पिक्चर में बताई है. थैंक यू. वन बाय वन. ओके, अब इनके बाद माइक वहाँ पे जो ग्रीन टी शर्ट में उनको देना. थैंक यू. जूही मैम, जैसे ओवर हियर प्रियंका, जैसे टीचर से है, आपका स्कूल में फेवरेट टीचर कौन सी थी और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? एक्चुअली हमारे स्कूल में एक सर सिंह होते थे, हिंदी के टीचर. सो स्वीट. और हाँ, मतलब वो, और गर्ल्स का स्कूल, सारी लड़कियां, एंड फ्यू टीचर्स वर मेल. तो ये थोड़े मिडिल एजेड, चश्मे वाले, थोड़े से मोटे सर सिंह. और जब हम जवाब ठीक ना दे तो बेवकूफ़, बदतमीज़. तो वो इतना प्यार से डांटते थे कि हम फिर जब क्लास ख़त्म हो जाती थी तो बेवकूफ़, बदतमीज़ हम एक दूसरे के साथ जोक करते थे. तो वो बड़े मतलब याद रह गए, इनकी ये बातें याद रह गई. एंड जैसा कि आपने कहा अभी, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं कि सर सिंह अब कहाँ हैं. या फिर कभी कभी डांट भी पड़ी है. डांट मतलब कुछ तो ऐसी टीचर्स होती थी जो देख कर ही घबरा जाओ, ऐसी भी टीचर्स थी. जिन्होंने पनिश किया ऐसी भी थी. और फिर इतनी कोई मीठी मीठी थी, जैसे कि हमारी मराठी की टीचर, वो सो स्वीट, इतनी स्वीट थी कि वो कभी हमको कंट्रोल ही ना करें. और जब आपको पता चलता है कि आपकी टीचर इतनी मीठी है, कभी कुछ बोलती नहीं है, तो क्लास तो एकदम ऊपर नीचे हो जाती थी. एंड एट द मोस्ट वो क्या कहती थी, इधर आओ, इधर आके बैठो. तो हम बड़े खुशी से उधर आके इधर उनके पैरों में बैठ के अपना लेसन करते थे. तो लाइक यू सेड, ये कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें बचपन की. एंड चलिए, मुझसे ही नहीं, किन्हीं और से भी सुन लेते हैं अगर आपके, हमारी क्या, इनफैक्ट दिस इज समथिंग वी ऑल गॉन थ्रू. नहीं, अब मैं आपको भी माइक दूंगी. सवाल पूछा है. या कुछ भी, कोई किस्से, कोई आपके पास होंगे शायद, किसी के पास कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो स्कूल का. चलो नेक्स्ट. All right, sir, before you ask the question, I'm so sorry, but he was the first who raised his hand. Please इनको दे दीजिए आप माइक वहाँ पे. So let him ask the question. And Juhi ma'am, how do you feel when such nice characters are written for female characters nowadays? So strong characters are coming along. How do you feel about that? And the second question is, how was it difficult for you to work with such an accomplished actress like Shabana ji in front of such a great actress? Actually, I was very excited. इनफैक्ट इस रोल, एक तो फिल्म बड़ी पैशनेटली लिखी गई है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में. अगर हमारी बातों से ऐसा कहीं लग रहा है कि भैया ये टीचर्स के बारे में ही है, तो ये ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट टेक्स यू विद इट.
And incidentally, it is yes about your teachers. जब ये आई थिंक स्क्रिप्ट आई ही हमारे पास तो इट वाज द रोल वाज इट सीम्स ऑलवेज मेंट फॉर शबाना जी. इनफैक्ट उस रोल में आपको कोई और दिखेगा ही नहीं, यानी yeah, you can't think of anybody else playing that role because she seems to fit in so beautifully to play Vidya ma'am. Exciting for me, मैंने उनके साथ पहली बार काम किया. एंड आपने जैसा कहा वेरी अकम्पलिश्ड एक्ट्रेस. इनफैक्ट मैंने उनके बारे में सुना था कि कैसे यू नो हाउ शी गोज़ ऑन अ सेट एंड हाउ शी फेमिलियराइजेस हरसेल्फ विद द सराउंडिंग्स, ताकि वो किस तरह उस जगह को इस्तेमाल करें अपने कैरेक्टर के साथ. तो मैंने सोचा मैं सब जब सेट पे होंगी तो मैं ज़रा कुछ उनसे बिना किसी को बताए, अब तो मैंने बता दिया है, मैं कुछ सीख जाऊँगी. So and again दिव्या जी का रोल भी कमाल का रोल है. And I said बाप रे, an actress like her is going to play it, she's going to do it beautifully. ये फिल्म मतलब कास्टिंग इतनी सही है और लोग इतने सही हैं. And then somebody who puts in the lighter moments in the film is उपासना जी. And हम सब जानते हैं इनसे बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता. She is fantastic with cute funny moments. She's the lovable teacher in the school. And हाँ नहीं, तुम तो विलन हो ही और दिख भी रहे हो आज. अरे गेट इन लाइन. हाँ मैं भी रह गया हूँ. और आज बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं. ये इस तरह नहीं लगती फिल्म में. ये मिसेस पिंटो प्ले कर रही हैं. पिंटो मैम एक होती थी, हर स्कूल में एक पिंटो मैम होती हैं. और ये उनका रोल कर रही हैं. You will not recognize her today and there. She is wonderful. She is wonderful. You want to go and hug this cute, little elderly, sweet, plump teacher who's in your school. Thank you so much. And ये नुसरत, she plays नुसरत. कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल की एक्ट्रेस है. आप देखेंगे जब फिल्म आएगी, आप ज़रूर देखेंगे. एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर एक्टर्स. ये ऑफ कोर्स वो विलन मंडली है, तो ये इनके बारे में आई थिंक आप लोग ही बात करें. एंड आई ओह माय गॉश, नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं. शी इज प्लेइंग द राइट हैंड पर्सन ऑफ दिव्या. हाँ, दिव्या के कैरेक्टर के साथ एक्चुअली द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट हर वुड बी यू ना. सबसे ज्यादा तो आप दोनों चॉक एंड डस्टर जो बने थे साथ साथ हैं. आप ही बता दें. But I think I've known her for very long, and when you watch this film, you'll actually hate her in the film, and that's, I think, the biggest accomplishment for an actor for doing a role like that. It is education versus the management, and it is idealism versus the practicalities of life, and she's, I think, done a great job of it. I think she'd be a better person to talk about it. Saiba, you're on to you. आप बोलिए. आप लोग बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. Please, दिव्या जी, आप बोलिए. मैंने तो बोल दिया. Next question. My question to you three, जूही, उपासना, दिव्या. नॉर्मली स्कूल में जब बच्चे होते हैं अपनी टीचर की पीठ के पीछे एक ऐसा नाम रखते हैं जो उनका एक अपना होता है. तो क्या आप तीनों ने भी अपने टीचर का कोई नाम रखा था और है तो जरा बताएंगे आप. मुझे पहले बता दूं, मुझे अपना कोई टीचर अच्छा नहीं लगता था. उसका रीज़न ये था कि मैं महानालायक स्टूडेंट थी अपने स्कूल की. अब मेरी बहन जो है वो कभी भी क्लास में सेकंड नहीं आई, वो फर्स्ट आती थी. और वो क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो उसी क्लास में से जाती थी और उसके बाद मैं आ जाती थी वहाँ. तो उनको लगता था निरुपमा की सिस्टर उपासना बहुत लायक होगी, तो सारे क्वेश्चन सबसे पहले मुझे पूछे जाते थे और मुझे किसी का जवाब नहीं आता था. और मैं अपने घर आके अपनी बहन से बहुत लड़ती थी, तेरी वजह से जो है टीचर्स मुझे ऐसा, मैं तेरी वजह से ऐसा होता है, तूने मुझे डांट पड़वाई. और मैं सबसे पीछे बैठती थी और मैं अपनी मम्मी को आके बोलती थी कि मेरे को ये स्कूल चेंज करना है क्योंकि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे नंबर कम देते हैं. तो होशियारपुर के 8-9 स्कूल हैं, सब में मैं पढ़ी हूँ. हर साल मैं स्कूल चेंज करती हर साल मैं स्कूल चेंज करती थी और हर साल मैं यही बोलती थी कि ये टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे को दूसरे स्कूल में डालो, ये मेरे को डांटते बहुत हैं. और क्योंकि मैं छोटी थी और मैं बहुत लाडली थी, इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में डाल देती थी मेरी मदर. और फिर अपनी थोड़ी लाइकी भी बताऊंगी, ऐसे नहीं इतने कैमरे ऑन हैं.
उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो अब अपनी मर्जी से सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो इंग्लिश तो मुसीबत के मारे रखनी पड़ती थी, और बाकी मैंने डांस, पेंटिंग और म्यूज़िक 3 सब्जेक्ट रखे, और उसके बाद मैंने एमए फाइनल ईयर तक स्कॉलरशिप लिया। अभी तालियां मारो मेरे लिए क्योंकि वो तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो उसमें मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। हाँ, अभी आपने पूछा कि टीचर का क्या नाम रखा था, मैंने तो हर टीचर के बुरे बुरे नाम रखे थे, लेकिन एक ही नाम बताती हूँ। एक टीचर था, उसकी थोड़ी आईज मतलब इस तरह की थी, उसका नाम मैंने डिप्पर रखा था, डिप्पर डिप्पर सर। तो मैं सब टीचर से डरती थी और सबसे पीछे बैठ जाती थी। मुझे लगता था कि कहीं मेरी तरफ देख के कोई क्वेश्चन का आंसर ना पूछ ले, और हर 2-3 दिन बाद मेरा पेट में दर्द हो जाती थी, 2-3 दिन बाद मेरा सर दर्द होने लगता था कि स्कूल नहीं जाना पड़े। तो इतनी लायक स्टूडेंट में रही हूँ, और हर टीचर का नाम अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर काफ़ी मतलब वो हो जाएगा अभी जूही जी बताएंगे, ये तो लायक स्टूडेंट रहे हैं। इस क्यूट से आंसर के बाद मेरे पास ऐसा कोई आंसर है ही नहीं। हाँ जी, एक बहुत छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ। हमारे एक टीचर थे AK शर्मा जी, मैथ्स पढ़ाते थे, और हमारी फिल्म में इसमें चौक एंड डस्टर में एक सरप्राइज टेस्ट है, जिसके बाद एक ट्विस्ट आता है कहानी में। तो वैसा सरप्राइज टेस्ट बहुत होता था। तो एक अलजेब्रा का वो है x + y होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। तो ऐसी क्लास में आके बोलते थे, हाँ भाई वर्मा चल बता भाई x + y होल स्क्वायर क्या होता है। अब सर कहाँ याद करते हैं, कहता अच्छा आ जा इधर। तो पेन लेके ना मेरे माथे पे लिख देते थे x + y होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। अब सारा दिन बैठे रहो माथे पे लिखवा के, और लास्ट पीरियड में जाकर उनको दिखाओ सर अभी तक लिखा हुआ है, फिर वो मिटा दो, फिर घर जाओ। अब पहले 2 दिन ऐसे बैठे रहे शर्मिंदगी में, फिर लगा कि भूख लगी, कैंटीन जाना है। तो बाहर जाके देखा कैंटीन में 50-60 और घूम रहे होते थे, जिनके माथे पे कोई ना कोई इक्वेशन लिखी हुई थी। लेकिन सर वो इक्वेशन x + y होल स्क्वायर वो मेरे माथे पे लिखी थी, मुझे आज तक याद है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। ऑलराइट, we've got little time constraint. I'm sure all of us are having a superb time. So last 2 questions. Let's go with her and one more out here. Yeah. जूही मैम हियर, तान्या फ्रॉम लाइव इंडिया। आप काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। जैसे कि उपासना मैम बता ही चुकी हैं कि आजकल ऐसी फिल्म भी बनती हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं होते, लेकिन सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। तो ऐसे दौर में आप अपनी फिल्म को कहाँ देखती हैं, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं वो आजकल कोई लेके नहीं आता है। तो किस तरीके से देखती हैं अपनी फिल्म को और कितना एक्सपेक्ट करती हैं फिल्म से? आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही हमारा आंसर मिल गया हमें, कि जहाँ आप हल्की फुल्की फिल्में देखती हैं या एंटरटेनमेंट हो जो हो, मगर हमारी क्योंकि अलग है और हमें ये कहना ही नहीं पड़ रहा कि ये अलग है। आई थिंक दैट इज़ व्हाई इट स्टैंड्स आउट। एंड यही नहीं कि सब्जेक्ट अलग है, I think just the way the whole treatment is there, it's got all the elements that you look for in an interesting, entertaining, engaging film. मैं क्या कहूँ? I wish you could see more than the trailer today. I wish you could see the film today. मगर हमें 1-1.5 महीना रुकना पड़ेगा. And I would really want all of you come see the film. And आपके हर question का answer वहाँ पर पर्दे पर होगा। Thank you. Hi, I have a question for the entire cast of the film. Of course, it's a regular day for us in Mumbai today, but in Chennai, the entire city is almost submerged in water. Just a quick reaction from each one of you on what you feel. Is there some word of encouragement for them, or what are your thoughts? Starting with you, Juhi. Well, guys, since we are really running short of time, I would request you all to... Just one, you know, I think it calls for the... Okay, quickly Yeah, that answer would be... question. I think it's a pretty obvious answer is it's extremely tragic. It also shows that we have to live in balance with nature. It also tells us that our cities need to be well planned,
that development is not everything, and we should know what price we are paying for the development. And I hope and pray to God that this doesn't happen to other cities as well. Thank you. Juhi, you Thank want you to so add to much. it? Guys, last question over to her. Can you have the mic, please? The mic is there. Hi, Pooja here. Juhi, I wanted to ask you that do you miss playing romantic roles which you used to play in 90s? She's playing a romantic role next to me. So there you go. Don't you dare insult me. She's my wife. Okay, We have a lot of romance. The film is full of romance. So, Teachers also romance. You know that? What do you think? How dare you ask that question? okay, What is it? You don't think? What do you think I'm doing in the film? so No romance? So she is a romantic teacher. Every scene I did with She her, is I a hugged her. How much romance do you want? Okay, she is a romantic teacher. What? What are you talking about? Okay, now Juhi will answer. Yeah. Please. कैसा क्वेश्चन हो रहा है ये यहाँ पर? Well, इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा मुझे. Am I missing anything? Actually, I'm not missing anything because now of late I'm getting roles which I really enjoy playing. मतलब इसी फिल्म को देख लो. I think it has been one of the most interesting experiences. If I just look a little back, I say Gulab Gang was great. I had great fun in it. So I'm really not missing anything. In fact, I'm enjoying this whole journey very much right now. Okay, thank you. Thank you, Juhi ji. Thank you so much. And yes, the ma'am out here would like to talk to us. जूही जी. ओके, आपको दिया जाएगा. 2 मिनट बैठ जाइए. जूही जी, उपासना जी, दिव्या जी, सब लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ. जब हमारा मुहूर्त हुआ था तब शबाना जी ने एक बात बोली थी बाबा जी के लिए कि इतनी सारी औरतें हैं तो आप देखेंगे कि कैसे हैं. आज आपको बाबा साहब हैंडसम और स्मार्ट नहीं लग रहे पहले से ज़्यादा? ये मैं कब से बोलना चाह रही थी, बस यही बोलना था. थैंक यू. Thank you. Okay, we take the last question from him, please. Yeah. जी, मैं रितेश श्रीवास्तव ETV से. मेरा सवाल सिंपल सा है कि आज एजुकेशन की यहाँ बातें हो रही हैं. अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी PVR थिएटर में कि लोग राष्ट्रगान पे नहीं उठे थे. तो क्या आपको लगता है कि एजुकेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? मैं चाहूँगा आप तीनों लोग रिएक्शन दें, दिव्या जी भी, उपासना जी भी और जूही जी, प्लीज़. I think education is not just learning history, geography, civics. It is being also a better person. It's not just your information that you gather in school. It is also manners. It is also love and tolerance. It's all of that. All I'd say is, see, I don't know what was going on in the minds of those people who decided not to stand up. Speaking for myself, I always stand up. I see the Indian flag and I want to thank my country. कि thank you, आपने मुझे इतना कुछ दिया इस धरती ने. So, I think, I don't want to sound controversial and say something against it. I think you just lead by example. Lead by example. Be the change you want to see. So, you continue to stand up. You continue to respect your country. You continue to be a good citizen. And let others learn from you. And let us not learn from them. वैसे तो जूही जी ने जो जवाब, आई एम सो सॉरी. मेरे ख्याल से नेशनल एंथम पे पीपल शुड स्टैंड अप, पीरियड. ना इसके आगे कुछ ना पीछे कुछ. इस पे डिबेट डिस्कशन नहीं हो सकता. यू जस्ट हैव टू स्टैंड अप. इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू और व्हाटएवर, यू नो. बट फैक्ट ये कि आपका नेशनल एंथम जब हो रहा है तो आपको खड़े होना है. बस इस पे डिस्कशन नहीं हो सकता. या
आप सुनेंगे, आप खड़े होते हैं naturally. It comes naturally. Very, very well said. Thank you so very much. All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for the wonderful interaction with our entire cast and crew of Climax takes you to a real high. आप उठकर तालियां बजाएंगे. So क्या कहूँ, I know it sounds so odd कि खुद ही अपनी फिल्म की हम तारीफ करेंगे बट ये फिल्म सच्ची तारीफ के लायक है. आपको आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी. Do you got emotional while, as you said, the climax को देख के आपको लगेगा आप तालियां बजाएंगे? Do you got emotional while shooting the film, while being a part of it? The climax takes you to a very happy high. Did I get emotional about it? I was actually it's not like that we are sitting and crying in the film. ऐसा इतना बड़ा रोना धोना नहीं है. In fact, it makes the audience very touched. I'm not able to describe this film to you क्योंकि सब लोग ऐसा सोचे यार स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में किसको देखना है. It's not like that. ये एक कहानी है और आप इस कहानी के साथ बहेंगे. आपको हर मोड़ इसका लगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे ऐसा भी होता है. यार आके देख लो, मुझसे पूछो मत, आकर देख लो पिक्चर. Okay, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि ये एक अलग तरह का एक टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर, मतलब एक्टिंग के लिहाज से? Do you think ऐसा किरदार कभी भी जूही ने कैरियर से लेकर अब तक निभाया नहीं है? Do you say this? मेरा हर किरदार आई एम सो हैप्पी टू से, चाहे मैं कम फिल्में कर रही हूँ आजकल, मगर हर चीज़ जो मैं करती हूँ कुछ अलग होती है और इसमें कुछ करने की बात होती है. हाल ही में मैंने जैसे गुलाब गैंग की तो उसमें मुझे लगा टू प्ले दैट पॉलिटिशियन, टू बी दैट मतलब मैनिपुलेटिव कैरेक्टर and just be so cool. मेरे को बड़ा मज़ा आ गया. In this film it is not कि I am some deadly character या मैं तलवार लेके खड़ी हो जाती हूँ, मैं वो नहीं हूँ. I'm just a very normal person. मगर वो क्योंकि पानी जैसे जब सर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो ज़रा उसे ज़रा क्या बोलते हैं, गुस्सा आता है और वो आकर कुछ चीज़ें बताती है अपनी लाइफ के बारे में. एंड देन हाउ द फिल्म टेक्स अ टर्न फ्रॉम देयर. सो इट्स अ वेरी सिंपल रोल बट देयर आर सम सीन्स इन द फिल्म वेयर आई थिंक दे मेक वेरी गुड इम्पैक्ट एंड कुछ ऐसे सीन्स मेरे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड विद द होल फिल्म. आई वुडंट जस्ट से कि मैं अपने या इट्स नॉट दैट. और फिल्म आप देखिए, एक तो इंटरेस्टिंग फिल्म, फिर सोने पे सुहागा, एक्टर्स बड़े अच्छे हैं और जब एक्टर्स दिल से काम करते हैं, अच्छे एक्टर्स दिल से काम कर रहे हैं तो फिर एक चमक आती है जो आपको दिख जाएगी. बुर्दवान ब्लास्टर्स.